Hi Shivani, hi Pratha, hi Sahil, hi Vaibhav, hi Utkarsh. We would start in just a minute. Sir is online. Just Hi sir, Namaste, namaste sir. sir. Hi, 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 hi. Hi sir. How are you sir? I'm good. I'm good. You tell me. I'm fine sir. Fine sir, just fine. How is the lockdown treating you sir? Very busy. Doesn't make any difference Yeah, that it's lockdown or not because completely working on the films. Earlier in May and June, right sir. I was busy watching films. Now, since the announcement happened Yeah, in last 15 days, busy with the casting, busy with the meetings with cameramen, editors, and everyone. So, yeah, a little busy. right sir. Yeah sir, we saw your poster sir. It was really intriguing. Matlab, totally Yeah, different thank you. concept than other films sir. Yeah, thank you. Both the Thank you. posters we saw, one for Iti and other one for Rosie as well. Yeah, 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 yeah. Great poster sir. Sir, before we start, just like to give an introduction about us. So we are Yeah. Flickr. We basically are trying to get an OTT platform in every country. So we Okay. are trying that basically Netflix Prime and all the 50 OTTs which are in the Indian market, we are trying to aggregate it. तो हम चाह रहे हैं कि सारे प्लेटफॉर्म पे सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके आपको एक मीडियम दे जाके जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फॉर ऑल द मूवीज. Yeah. Yeah. Okay. So Okay. just to start, we would like to start with a basic question, sir. जो इति and Rosie movies हैं, there are Hmm. basically a horror thriller and murder mystery. तो आपको Yeah. inspiration कहाँ से मिली in these movies for these movies? Uh, I was a film critic before I started my career as a director for 2 years, Right. and before that I did my MBA from fashion, India's number one fashion college, NIFT, and Network all issue. 30. So it's fine. Well, I can hear myself. I can see all the comments. Okay, so yeah, so I was always a film buff. I loved films. I have seen almost all kind of films. Right. I'm not that much on social media except for my films. If you go on my accounts, you will all the accounts you will only find my films posters or update. I don't spend much of the time on social media. So since probably 1995, 96, my school days, college days, I always watching films, any kind of films, any language. I really love European films, especially Spanish, German. Okay. So I have seen those cinema for last 25 years. And then I was a film critic when I came to Bombay, and then I started making films. So I've seen almost every kind of genre, language, and thriller was a genre which I always wanted to make. But as you know, that thriller requires number one, lot of technicality, budgets, a certain amount of actor. And earlier I was making dark comedies and Yes. humorous kind of, व्यंग पे पहली दो फिल्में Right. थी मेरी. तो मैंने उस वक्त थ्रिलर का सोचा डेलिबरेटली कि जब 4 फिल्में बना लूंगा 3-4 and I can afford to make bigger films. So then I will Yeah. shift to this genre. And now, uh, as you know that then Vivek Oberoi sir, Vivek ji, and he loves me. He loves me for like for years, and he was Yeah. always thinking that he has to work with me in a film. So we figured that this is a script. I went to him, I think, probably with 5, 6 scripts, but we never able to reach to a conclusion creatively that this is a film we want to do. Then he said, "Okay, this is the film I really want to do." And Prerna ji, who's the producer of the film, Mandira Entertainment, she was in discussion with me for a year, and she is such a brave producer. So she also told me that she loved the script, and they came together, and thus these two films, which are my biggest films in terms of casting, budget, and expanse also. So they came in the shape, and this is a genre which I always like, which is a thriller and murder mystery. I've seen like almost every film which is possible. So this is a cinema I really wanted to make, and I have 5, 6 scripts already written in this genre in the last 4, 5 years, which I have written with my writer Abhar. So yeah, so that was it. Great, sir. Great.
So about this Rosie movie, the poster we have seen that poster. It's very unique poster, sir. The poster of the Rosie movie. So उसका idea inspiration Yeah. कहाँ से आई कि वैसा poster बनाना है इसका? Like a Google. Man, yeah. I think a lot of my followers and friends, Pankaj, hi, Pankaj from Lucknow. I think he was really messaging me since morning. It's the first time I'm coming live, and I have no time. I've just finished a call with Vivek ji for 2 hours on a script, and I have to go on another call from 8 o'clock to my DOP in London. He's sitting in London waiting for me, and I committed you, so I thought I should bail out, and you guys should do Very it. good place, sir. I'm not too fond of doing all the social media, but I said okay, let me do it once. So you asked me. Rosie is actually as poster says, ki, it's based on a true incident. Horror is a genre really I never wanted to make. I'm not really a big Yeah. fan of that genre because I love it, but I think in India, audience expect you to make horror in a very certain way. The very typical way जहाँ पे बहुत मुखौटा होगा, खून निकल रहा होगा, या पंडित जी आएंगे या कुछ होगा. So मुझको उसमें इंटरेस्ट नहीं Right. था. तो Right. मेरे को कोई ऐसी स्टोरी कभी था कि कोई आएगी अगर इंटरेस्टिंग तो मैं सोचूंगा. तो ये स्टोरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और मेरी पहली 2 फिल्मों में मेरे उन्होंने एज एन एक्टर भी काम किया था और मेरे असिस्टेंट रहे हैं, दिल्ली के हैं, सौरभ अवस्थी. वो तो उन्होंने मुझे दी थी. वो इस बीपीओ में ही काम किया करते थे, नोएडा और गुड़गांव में. तो ये 2003 की कहानी है गुड़गांव की, जो हमने पोस्टर में दिखाया है कि गूगल सर्च का हमने बार Right. बनाया है. और अगर आप वो सर्च करोगे तो आपको कहानी मिल जाएगी. तो ये क्लेम करने के लिए कि एक्चुअल सच्ची कहानी है, ऐसा नहीं. बहुत लोग अपनी फिल्मों में कहते हैं सच्ची है पर होती नहीं. तो ये है. तो अगर आप वो रोजी को सर्च करोगे, रोजी सैफरन कॉल सेंटर, तो ये एक सैफरन कॉल सेंटर था गुड़गांव में, जो बिल्डिंग आज भी खड़ी है. और वहां पे एक लड़की काम करती है जो अपने मरने के 8 साल बाद काम करती है. जब वो खो जाती है तो पता चलता है कि वो 8 साल पहले मर चुकी है. तो काफी मुझे स्ट्रेंज लगा ये वन लाइनर जब मैंने इंटरनेट पे पढ़ा उस जमाने में. तो मैंने कहा इसके बारे में हम रिसर्च करते हैं. फिर हम जितना पूछ सकते थे, फिर हमने उस पर एक स्क्रिप्ट डेवलप की और उस पर मेहनत की. और मुझे एक लगा कि बहुत अच्छा हॉरर और थ्रिलर के बीच की एक अच्छी मैरिज और एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हो सकता है. Right, sir. कोई तेजस सिंह है, वो मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट डज डी स्टैंड फॉर कॉफी विद डी. आप वो जाके नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो और गूगल कर सकते हो. डी स्टैंड्स फॉर दाऊद इब्राहिम. काफी बैंड बजी थी उस पिक्चर की इस चक्कर में. और बहुत लोग आ गए हैं. विकास हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं पंकज जी के ही, तो उनको भी हाय. मैं देखता नहीं हूँ बहुत ध्यान से, तो प्लीज सॉरी अगर किसी को मिस कर जाता हूँ. हाँ, और बोलिए, पूछिए. Yeah, so sir, we heard that इति is something in the terms of where you solve your own murder, जहाँ आप खुद का murder solve करते हो. So we Yeah. basically were brainstorming around it. So we had 3 theories. Either you can do it via rebirth, either you can go Okay. back in time and do it, or either you can come back as a ghost and do it. So So all three options are false. ये तीनों नहीं है. और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. आपको 2 साल सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको लिखने में 2 साल लगे. तो कोई भी इसको एक दिन में फिगर नहीं कर पाएगा. वो मेरी गारंटी. जब तक आप जब उसके पोस्टर भी अभी आ जाएंगे और आएंगे भी एक्टर्स के पोस्टर्स, तो मेन पोस्टर आएगा आई थिंक अगस्त एंड में या सितंबर में, शूट के पहले. तो उसके बाद भी और शूट के बाद ट्रेलर तक ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि कोई गेस नहीं कर सकता कि वो फिल्म किस बारे में है, एक्सेप्ट कि वो एक मर्डर मिस्ट्री है और एक थ्रिलर है. और उसमें कोई ऐसा भूत कुछ नहीं है, हॉरर नहीं है वो पिक्चर. बहुत मजेदार पिक्चर है, सिर्फ यही बोल सकता हूँ. और बहुत माइंड टीजिंग पिक्चर है कि इंटेलिजेंट ऑडियंस जिनको थ्रिलर देखने का शौक है उन्हें बहुत मजा आएगी. और तो चूंकि उस थ्रिलर पिक्चर तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन हाँ, बहुत एक नए तरीके से हमने मेहनत करके लिखी है. बहुत नए तरह का थ्रिल इंडियन ऑडियंस को देने की कोशिश की है. Great. तो सर इसमें जो कास्ट करेंगे एक्टर्स को, वुड इट बी अ न्यू टैलेंट कि आप किसी फेमस स्टार को लेना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक जैसा पहले हो चुका है अनाउंस कि इति में हम एक हमारा टैलेंट हंट है जो मिड डे में कुछ शुरू भी हुआ है और अभी काफी बड़े स्केल पे शायद वो शुरू होने वाला है 10 दिन में. तो उसमें हम रोजी में हम एक कंप्लीटली न्यू कमर को चांस दे रहे हैं, ऐसा हमारे प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया और मैंने कहा बिल्कुल करते हैं. तो उसमें एक न्यू कमर रहेंगे एक इंपॉर्टेंट रोल में, जैसा उसमें क्लियर कट लिखा है. जो लीड कास्ट है दोनों फिल्मों की वो ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी है पहले. तो उसमें सारे जैसे कि विवेक ओबरॉय कल अनाउंस हुए हैं. राजेश जी म्यूजिक दे रहे हैं, राजेश रोशन जी, और भी अभी 3-4 एक्टर हैं जो अनाउंस होंगे अगले 20 दिन में. 31 तक सब अनाउंस हो जाएगा. तो और उसके अलावा ये न्यू कमर है जिनको हम चांस देंगे. और न्यू कमर को मैंने वैसे ही बहुत चांस दिया अपनी पिछली फिल्मों में भी, तो वो कुछ इस बार हम अनाउंस करके एक ढूंढ के ला रहे हैं.
बट आई एम ऑलवेज बी ना कि उनको मैं चाहे लीड ना भी दूं तो छोटे रोल में या सिंगर है या कोई भी हो, आई ऑलवेज मतलब आई ऑलवेज बिलीव दैट न्यू पीपल शुड कम, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम अ लेवल एंड देन दे शुड मूव ऑन. तो लीड ना लीड, सपोर्टिंग, इट डजंट मैटर. कोबरा पोस्ट इज सेइंग हाँ कांग्रेचुलेशन, थैंक यू भाई. Yeah. आप बोलिए. Yes, sir. So just getting some bit of off topic. So, sir, we हाँ researched around and we know that you have graduated from NIFT Bangalore with the MBA fashion degree. So we just wanted to know, sir, कि आपने fashion से direction में जो shift किया, वो उसकी आपकी journey हाँ कैसी थी and what made you shift from fashion to direction? या सो जैसा कि मैं एक डॉक्टर्स की फैमिली से आता हूँ. माय फादर इज आई सर्जन एंड Right. आपका एक बैकग्राउंड होता है तो आपको ऐसे बैकग्राउंड से आप होते हो तो आपको पढ़ाई लिखाई बहुत करनी पड़ती है. आपको Right. बहुत True. कंसंट्रेट होके एक अपना एकेडमिकल कैरियर पे बहुत फोकस करना होता है जब आप ऐसी फैमिली से होते हो. तो एक तो मेरा मेरी अर्ली एज उसमें भी थी और पढ़ते पढ़ते जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि इस एजुकेशन को एक मुकाम पे ले जाएं. और बचपन से फिल्मों का शौक मेरा हमेशा का था. वो ऐसा नहीं था कि कभी मेरे को शौक चढ़ गया कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे कभी शौक चढ़ गया कि मुझे डायरेक्टर बनना है. वो बहुत क्लियर था कि मुझे राइटिंग बहुत पसंद थी. मैं गाने भी लिखता हूँ, मैंने लिखे हैं 2-3 गाने जो अपनी फिल्मों में और बाहर भी हिमेश की फिल्म में लिखा है. मेरी शायरियाँ बहुत लिखता हूँ जो रहती हैं इस पे, इंस्टाग्राम पे भी है, बहुत जगह है. मैं तो वो मुझे शौक था Sir, हमेशा उन्हीं से. शायरी में से if you can say 2 lines, sir. तो अभी रिसेंटली आपने स्टोरी पोस्ट की थी, एक डायरी लिखी थी. मैं हर 2-3 दिन में लगाता हूँ. वो मुझे याद भी, मैं सुना दूंगा अभी आपको. तो फिर वो निफ्ट से जी. निकला और फिर मैं ये सब लिख रहा था. तो फिर मैंने अपना आई pursued my professional career. I was doing fashion marketing with different brands for 4-5 years. But obviously it was going on in mind since quite an early age when I was probably 10, 12 year old. Ki I have to do something in films. I was crazy and I used to watch, even when I was in job or when I was studying, I used to watch 3 films a day, 4 films a day, जितना मैं देख सकता हूँ. मैं अभी भी लॉकडाउन में रोज 4 फिल्में देख रहा था, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 14 घंटे. तो मैं कितनी भी फिल्में देख सकता हूँ. तो वो था. तो वो देखते देखते ये था कि जाना तो है यार. और मैं ऐसा बाई नेचर या बोलो कि बहुत जैसा मेरा एक मेरी बाई थॉट प्रोसेस मेरा ऐसा कुछ बहुत है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकूं या बहुत ज्यादा किसी को फॉलो कर सकूं. ऐसा मेरा, कहते हैं ना, मिजाज नहीं है मेरा. तो ये था कि हाँ अगर आऊंगा बॉम्बे तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना, मैं किसी को जानता हूँ, तो एक प्लान होना चाहिए कैसे आऊंगा. तो मैं आया फिर जब जॉब छोड़ के और मैंने फिल्म क्रिटिक बना. मैं पहले अपनी कंपनी खोली जो फिल्म जर्नलिज्म और फिल्म क्रिटिक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर थी, बॉक्स ऑफिस कैप्सूल. वो काफी पॉपुलर हो गई 2 साल में. दीपिका पादुकोण से लेके और बहुत सारे बड़े एक्टर्स को फॉलो कर रहे थे, इंटरव्यूज देने लगे उसके लिए. और वो मेरा बहुत उठना बैठना बोलना चाहना हो गया. तो जब वो हो गया तो फिर मुझे लगा कि अभी ये हो गया यार, 2 साल हो गए, बहुत पॉपुलर और मैं बहुत इम्पेशेंट आदमी हूँ. तो मैंने कहा कि अब इसके साथ साथ मुझे लोगों को बताना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ. तो मैंने जितने भी मेरे जानने वाले डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनको मैंने पिच करना शुरू किया, दोस्तों यारों को, कि ये मैंने कहानियां लिखी हैं, ये बननी चाहिए. तो वाशु भगनानी जी ने मेरी पहली फिल्म जिनके साथ मैंने शुरू मतलब साइन हुई थी, वो बनी नहीं. कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस थे, गोविंदा थे उसमें. इट वॉज अ पॉलिटिकल फिल्म, पॉलिटिकल सटायर. वो हुआ, वो नहीं हुई. फिर एक हिमेश जी के साथ फिल्म थी, वो अनाउंस हुई, वो नहीं हुई. और ये सब 1 साल में ही हुआ. तो मेरे को कोई डिसअपॉइंटमेंट का फेज नहीं है. मेरे पास कोई बहुत स्ट्रगल की कोई बड़ी डार्क कहानी या कोई बहुत दुख भरी दास्तान नहीं है. तो वो मतलब वो दोनों फिल्में जब नहीं हुई तो भी मैं बहुत कोई डिसअपॉइंटेड नहीं था, बिकॉज आई वॉज 3 year old इन बॉम्बे. मैं 2 ही 3 साल हुए थे. तो मुझे लगा था कि हो जाएगा आगे पीछे. वो फिल्मों के अपने रीजन थे और जब मैं अभी मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है ठीक ही हुआ नहीं हुई. क्योंकि वो जिस तरह का शायद सिनेमा था वो पता नहीं यार काश थी वो कैसी बनेगी. जो होता है अच्छे के लिए. और फिर एक फिल्म थी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, तो उन्होंने मुझे मिलवाया किसी से और फिर कॉफी बिड्डी बनी. फिर मरुधर एक्सप्रेस बनी, फिर होटल मिलन, और फिर सिलसिला चलता गया है. काश के हम अब जो रिलीज होने वाली है इस साल, और उसके बीच में ये 2 फिल्में अभी मैंने जो साइन किए. तो हमेशा से फिल्म का वो था. उसका मेरी पढ़ाई से या मेरे करियर से कभी ये नहीं था कि मैं वो कर रहा था तो मैं फिल्में मेरे साथ नहीं थी. फिल्में मेरी जिंदगी का हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्सा रही है. अभी भी मैं उसको प्रोफेशन नहीं, पैशन मानता हूँ. पैशन से ज्यादा वो मेरी जिंदगी जीने का तरीका है. कि मतलब मुझे उसके अलावा कोई लाइफ जीनी आती भी नहीं है. अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैं दुनिया में कभी भी कहीं भी किसी हाल में रहा हूँ पर फिल्म हमेशा मैं देखता हूँ. तो या तो मेरे चोर सो वो कह रहे हैं एक्साइट्स फॉर एटीएन रोजी, थैंक यू. और पता नहीं कुछ लोगों ने ऊपर लिखा है, सबको यार बहुत सारा थैंक्स. पूछे पूछे.
सर तेजस सिंह पूछ रहे हैं फॉर फैशन, आई फॉलो माय सेंस ऑफ फैशन, या बोलिए। हम्म, हाँ। yes sir हम्म, so you basically were आप डायरेक्शन की साइड से ज्यादा थे as you said as of right now writing and direction so या what you राइटिंग made you वाज, shift हाँ, towards Yeah. राइटिंग वाज माय बेसिक, सी एक्टिंग कभी करनी नहीं थी, राइटिंग मेरा पैशन था। तो राइटर जो होता है उसका सबसे बड़ा पैशन यही होता है कि यार जो वो लिखे वो आगे जाए, वो लोग देखें और उसको पसंद करें, उसको एंजॉय करें। और सबसे अच्छा तरीका राइटर के लिए अगर कोई अपनी चीज को पहुंचाने का या कहने का है तो वो डायरेक्टर बन जाए, तो उसकी कहानियां वो अपनी तरह से कह सकता है। तो मेरे पास ये था कि चूंकि मैं अपनी राइटिंग पे थोड़ा, मुझे आप कह लो घमंड था या प्राउड था कि मैं ठीक ठाक लिख लेता हूँ, चाहे वो शायरी हो चाहे फिल्म। तो मैंने कहा कि यार इसको करते हैं, और अगर लोगों को मेरे आइडिया अच्छे लगते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ हर फिल्म में कि प्रॉब्ली मेरी अब तक की सारी में इति और रोजी में भी आप देखेंगे बहुत बढ़ चढ़ के कि जितना ज्यादा नया हो सके उस ब्रैकेट में। Right. फेलियर से नहीं डरना चाहिए ज्यादा कि पॉपुलर फिल्म बनानी है, ऐसी बनानी है, वैसी बनानी है। Hmm. जो आप नया पेश कर सके, क्योंकि सिनेमा की खास बात यह है कि इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री। ये जिंदगी भर रहता है, आपके मरने के बाद भी रहता है। तो बहुत जरूरी नहीं है कि आप उस वीकेंड का कलेक्शन या बहुत उस वक्त की फेम या उस वक्त के नाम के लिए फिल्म बनाएं। आप वो बनाएं जिसमें आप बिलीव करते हैं, वो बहुत जरूरी है। वो Right. मैंने हमेशा कोशिश किया कि चाहे मैं जो भी जॉनर बना रहा हूँ, जो भी फिल्म बना रहा हूँ उसमें मेरी बिलीफ या मेरी सोच जरूर दिखनी चाहिए। जैसे पहली फिल्म थी कॉफी विड्डी, तो उसमें का दाऊद का मजाक उड़ाया है, तो वो मेरी सोच है वैसी। तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि मुझे कि हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में दाऊद को हमेशा सेलिब्रेट करते थे कि वो बहुत रुतबा है, उसकी गाड़ी है, उसके पास लड़कियां हैं, उसके पास Yeah. पार है। तो मैंने उसका ठीक उल्टा सोचा था कि जो आदमी 20 साल से कराची में बंद है, वो उसकी क्या पावर हो सकती है, क्या हो सकता है अगर वो बहुत गरीब और बुरे हाल में है और बहुत भुखमरी के हाल में है और भिखारी हो गया है, तो वो कॉमेडी कैसे आएगी अगर अर्नब गोस्वामी उसका इंटरव्यू लेने जाए कराची, क्योंकि अर्नब भी अपने आप में एक कमाल आदमी है। तो मैंने कहा कि ये Yeah. कुछ एक बहुत मजेदार सिचुएशन बनेगी। तो वो दोनों एक सच्ची चीज थी, उसको लेके कुछ नया बनाना। तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू, दैट्स वेरी वेरी इम्पेरेटिव इफ यू हैव अ पावर टू क्रिएट सिनेमा। या हाँ। right Great. सर तो एक क्वेश्चन था कि आज जो कोविड पेंडेमिक अभी चल रहा है, तो इससे क्या बॉलीवुड की मूवीज में कोई शिफ्ट आएगा, क्या चेंज होगा, एनी हाँ चेंज यू माइट मतलब, सी? हाँ हाँ मतलब अगर आप बॉलीवुड देखोगे, जैसे सारी इंडस्ट्रीज हैं वैसे ही बॉलीवुड है, कोई इसमें अलग से है, नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री सब चीजों में एक रीसेट और एक जैसे कहते हैं कि एक तरीके का नया फॉर्मेट और नया एक पूरा एनवायरनमेंट अभी क्रिएट हुआ है इसकी वजह से, तो चेंजेस आएंगे। बट जितना मेरी समझ है, मुझे समझ में आता है, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड दैट there is nothing is permanent. I think we will go back to normal sooner or later. It can be 6 months, a year or two. And as far as Bollywood is concerned, the cinema is concerned, theaters will always dominate that big screen experience, and the theaters, they will never go out of fashion. 80s में वीडियो कैसेट आए थे, 90s में सैटेलाइट आया, 2000 में यूट्यूब आया और डिजिटल आया, अब ओटीटी आ गए हैं और कोरोना आ गया है। तो बट हर चीज एक करेक्शन लाती है, क्वालिटी अप होती है, स्केल बढ़ता है। अब सिनेमा में और आपको विजुअल मीडियम को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा कि फिल्में बहुत बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस हो, उनमें साउंड अच्छा हो, उसका विजुअल अच्छा हो। आप बहुत घटिया सस्ता माल नहीं चिपका सकते हैं, जो कि उस तरह का बहुत सा माल ओटीटीज पे आएगा और तो लोग उस तरह का माल यहाँ कंज्यूम करेंगे, तो आपको थोड़ा एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ करेक्शन देन कि कोई बहुत बड़ा किसी चीज में चेंज आएगा। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। और एज अ ह्यूमन रेस, आदमी जो होता है वो बहुत जल्दी, उसकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। तो जितनी जल्दी होगा लोग भूल भी जाएंगे, जितना अभी परेशान है, जैसे ही पता चलेगा दवाई आ गई, लोग इससे भी ज्यादा पागल होके फिर बाहर घूमने लगेंगे। ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि ये मैनकाइंड की हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है, मतलब पिछले 300 साल में भी ऐसा 5-6 बार हो चुका है। तो जस्ट बिकॉज हम पहली बार देख रहे हैं तो हमें लग रहा है जैसे हमने अपनी जिंदगी में वॉर नहीं देखा है, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर या इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं देखा है, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। बट हमारी पिछली जनरेशन ने 2-3 बार देखा है, तो वो मतलब पहली बार नहीं हो रहा है। वो हर चीज का एक प्रो होता है, एक प्रॉस होता है, कॉन्स होता है, बट देन वो करेक्शन के बाद चीजें सेटल हो जाती हैं। कुणाल right sir मिश्रा आ so गए हैं sir ऑनलाइन, बड़ा प्यार करते हैं मेरे को, तो थैंक यू यार। हाँ। yes sir so just on the topic of OTT sir do you think कि OTTs can overtake cable network very soon in India? टीवी, हाँ, देखिए टीवी और ओटीटी में एक तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क जो बहुत बड़ा फर्क है वो ये है
एक की शेड्यूल प्रोग्रामिंग और अनशेड्यूल प्रोग्रामिंग, कि मतलब टीवी पे आपको एक वक्त पे जाके एक प्रोग्राम देखना होता है। इसमें आपको फ्रीडम मिल रही है, आप कभी भी देख सकते हो, दैट इज नंबर वन। बट इसकी जो मुझे लगता है लॉन्गर टर्म में, मतलब आफ्टर 2-3, अभी नया नया एक क्रेज आया, जैसे इंडिया में मोबाइल आया था या पेजर आया था, तो हर कोई, तो हमारे हिंदुस्तान में थोड़ी भीड़ की मानसिकता भी ज्यादा है, क्राउड मेंटेलिटी, एक सब करते हैं तो सबको करना है, अगर सब इंस्टाग्राम करेंगे तो सब इंस्टाग्राम करेंगे, सब फेसबुक तो सब फेसबुक करेंगे, इंडिविजुअलिटी हमारी सोसाइटी में वैसे ही बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि वो अभी ओटीटी का एक चलेगा, एक बाढ़ चलेगी 1-2 साल, बट ओटीटी में मेरे लिए, मेरे जैसा ऑडियंस, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं कर रहा, एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि वो आपको कम्युनिटी व्यूइंग का मजा नहीं देता। कम्युनिटी व्यूइंग जैसे हम कहते हैं कि अगर हम फ्राइडे को अगर शाहरुख खान की सर की फिल्म आई है चेन्नई एक्सप्रेस, और मैं वो देख के निकला, और मैंने अपने 4 दोस्तों को फोन किया, यार चेन्नई एक्सप्रेस देखी, तो हाँ वो मेरे ही थिएटर में देखी, मैंने 40 लोगों के साथ देखी, लोग रिएक्ट कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, वो मजा आता है। बीच में उठ के आप बाथरूम नहीं जाते हो, बीच में उठ के आप कह रहे पॉज करके यार 2 फोन कर लेते हैं, कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा लेते हैं, आपका बहुत हाईली कमिटेड व्यूइंग होती है। तो एक तो वो नहीं है, तो कम्युनिटी एक्सपीरियंस नहीं है। आज भी अगर आप ओटीटी के किसी भी सीरीज हो, कोई भी हो, उसको अगर आप अपने फेसबुक वॉल पे ही या फोन पे ही 4 लोगों से पूछोगे उसके बारे में, तो वो लोग के डिफरेंट डिफरेंट राय होगी। वो सोशल प्रेशर अलग है कि लोग बोलेंगे नहीं साहब नार्कोस नहीं देखा तो आपने कुछ देखा ही नहीं, वो एक अलग बात है, बट हर एक की राय अलग होगी। सिनेमा की तरह नहीं होगा कि आपने गए और 40 लोगों ने एक शॉट पे एक साथ ताली बजाई, एक वो एक्सपीरियंस आप कभी ओटीटी पे क्रिएट नहीं कर सकते। नंबर 2 से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो स्पोर्ट्स देता है, जैसे या जो इस तरह की फिल्में देती हैं, कि जो एंटिसिपेशन होता है एक फिल्म का, कि लाइक अभी रणवीर सिंह की 83 फिल्म आ रही है, तो आपको 83 एक पर्टिकुलर तारीख को जाके देखनी होगी थिएटर में, या क्रिस्टोफर नोलन की एक टेनेट आ रही है, तो टेनेट आपको थिएटर में जाके उस दिन देखनी है। वो एंटिसिपेशन नहीं, मुझे पता है अगर मैंने ओटीटी पे 1 तारीख को ये मिस कर दिया, मैं 10 दिन बाद देख लूंगा, या शायद कभी ना देखूं, या कभी फॉरवर्ड करके देख लूंगा, या किसी से सुन लूंगा, या मुझे कोई एंड बता ही देगा, कोई थ्रिलर पिक्चर आई, आपके दोस्त ने, आपने सोशल मीडिया पे बता दिया। थिएटर में ये है कि आज की तारीख में मैक्सिमम कंजप्शन पहले 7 दिन में ही हो जाता है, 10 दिन में आपको पूरा हिंदुस्तान के 2 करोड़ लोग देख चुके होते हैं हिट फिल्म। तो एक वो बहुत बड़ा फर्क है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा फर्क जो होगा, जहां पे आप ओटीटी और केबल का फर्क देखोगे, कि केबल विल ऑलवेज रिमेन अ सेंसर्ड मीडियम, अ फैमिली व्यूइंग मीडियम, और ओटीटी इज अ वेरी अनसेंसर्ड मीडियम। जनरली आपको पता है कि आप ओटीटी पे कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको नहीं पता है कि अभी इसमें कौन सी वल्गैरिटी या कौन सी गाली आ जाएगी, और बहुत लोग तो और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बना ही इसलिए रहे हैं कि उनको ये डालना है, कि उनको लगता है इसके बिना बन ही नहीं सकता ओटीटी पे कुछ। तो वो कमियां हमेशा रहेंगी, और वो कोई भी चीज मुझे लगता है कोई रिप्लेस करे ये बड़ा मुश्किल है। मतलब हमें लगता था कि टीवी आ गया तो लोग रेडियो नहीं सुनेंगे, फिर आया कि साहब केबल आ गया तो अब टीवी नहीं देखेंगे, फिर डिजिटल आया तो केबल टीवी नहीं चलेगा, बट आज रेडियो भी है, एफएम्स हैं, कारवा आ गया है, लोग एयरपॉड्स पे गाने सुनते हैं, और आज डिजिटल भी है, आज यूट्यूब भी है, टीवी भी है, या कपिल शर्मा, बिग बॉस जैसे बड़े बड़े शो हैं, और आज सिनेमा भी है। तो सब कुछ को एग्जिस्ट कर रहा है। कोई किसी को जहां पे थ्रेटन करने की, खत्म करने की बात होती है, वो बहुत इमेच्योर बात है। कोई चीज किसी को रिप्लेस जल्दी नहीं करती जब तक कि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट ना हो जाए, कि मतलब वो टेक्नोलॉजी ही एकदम नया आ जाए, फिर वो एक अलग बात, बट वो एक्सपीरियंस आप नहीं रिप्लिकेट कर सकते। रेडियो पे गाना सुनने का एक्सपीरियंस यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे सुनने का मजा टीवी पे नहीं है, टीवी का मजा इस पे नहीं है। तो हर चीज एक वो मजा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंटरचेंजेबल है यार। ठीक है सर, हमारी तरफ से यही क्वेश्चंस थे अभी के लिए, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर गिविंग लाइव सेशन विद अस। आप रियली एन ऑनर सर। यस सर। तो फिकअप की टीम की जैसे आप, हम थैंक यू करते हैं, और हम वेट कर रहे हैं आपकी मूवी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग जाके इसको थिएटर में देखिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरे कुछ 1 मिनट सबको मैं हाय बोल दूं जाने के पहले, जो है पंकज, थैंक यू सो मच यार। मानव, हेलो हेलो हेलो, थैंक यू। एंड आई थिंक इफ आई मिस समवन, बिकॉज ये लोग आके बाद में मेरे से बहुत लड़ते हैं अगर मैं भूल जाता हूँ। एक नंदिनी शर्मा जी हैं, शी इज वेरी गुड दिस dubbing artist. She does a lot of Hollywood films and Bollywood films. Okay. And she's being a very old follower of mine, very good friend. मेरी भी एक फिल्म की है इन्होंने, तो lots of love to you. And I think that is it. बाकी मुझे कोई दिख नहीं रहा है ऐसा, but ठीक है। Thank you guys, and you should have a best of luck for your platform, and keep working hard, keep doing well. Stay blessed, stay safe, stay healthy. Take care. Bye bye. Thank you sir. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.